everyone. Welcome back again to Edu-Astro, and here we have Nilaji once again in the Enlightenment and Meditation series. We have had around 3 to 4 episodes where Nilaji has got and discussed a lot of great things. Today we are going to have another fantastic session. Nilaji, welcome again, and here we go. Thank you, Kabirji, and thank you all the viewers. Let me tell you one thing before to all the viewers. So I have a little stammering problem. So while you listening the videos or all any episode, just ignore that part and be patient with that because I have given you such a depth insight which I have experienced in my life, and many others people have also experienced by practicing this. So just listen the gems of it and just ignore my stammering. So let's start with new fresh episode, which is episode number 5th. So let's do the recap first. So in 4th episode, we have discussed regarding the center point of the universe. So we have I have explained that where is our starting point and where we travel from, like which how many forms we go through, and from that form when we passes through, and when finally we will be in human form. Another point I have discussed in last episode regarding the 5 points of pursuing in the sadhana, which is like human form, body, mind, emotion, and breath. Another thing I have discussed regarding importance of our spine. And finally, I have discussed importance of oxygen level, what oxygen will do in our life. So now in next we're gonna move. We're gonna explore a little more about the pran urja, right? So the flow of energy, which is we are using, we are going to use pran urja to flow of energy from inside to going upward. So as soon as the energy of flow increase within you, you will automatically feel the distance between you and your own being, because that oxygen levels is help you to gain the awareness, and in that awareness you will see you it's a like tremendous difference. You will see your body become like transparent. You can clearly identify that I am not this. While doing any kind of act, you immediately experience that there is something between me and my own being. So there is a gap, and that is most important when you go in to meditation. So we while going in meditation, we need that gap, and that gap is only comes through awareness, right? So, and that pran urja, that will also help you when you do everyday pranayam, right? So everyday pranayam means you are hammering the energy to your level part, nabi. So every day when you hammer every day, right? So it helps to awake the energy, and it is not going to help. It is not going to happen in one day. You have to keep on doing it, keep on doing it. So one day you will realize that I have energy in my spine.
So you will understand, and there is nothing you will unknown. It's not like that something is happening without knowing me. If something is happened within you, you will immediately come to know. So don't worry about that, what is going to happen or how many days is going to take. You have to do unlimited. There is no point that if you do 6 months you will get the result, because this is very unknown area. It's depend upon your individuals, that how much you have unconscious, how much you have gathered from your past. So that So means according, yeah, everybody has a different journey, and according to that is what the time can be. Like, somebody can take 1 month, somebody can take 1 year, somebody can take 10 years. We don't know. even somebody take even one day. One day, yeah. That's, this is very unknown Right. things, so 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 the thing is, as soon as that prana urja start going upward, right, you will immediately feel that reflection in your outer exposure. You will feel happiness, you will feel blissful, you, you will be very active, your creativity will goes up, so it is not going to happen unlike without uh, knowing you. And for that, you have to be really sincere about your efforts. You have to be disciplined, patience, and perseverance. That all you have to have when you grow, when you go in the spiritual path. Now I have one more question which goes in my mind. In astrology, there is two word. Almost all the astrologer they use. One word is spirituality, and another word is moksha. Correct. They use this word that uh, how much I have the spirituality in me, कि मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं, right? Correct. So let me explain that word little bit in brief. Very What is important, sir. what Very is mean by important. spirituality and moksha? And this is very important because it is not only the people in astrology. I have seen people in non-astrology are just like that. They come and ask, or they come and try to inquire, what about spirituality and moksha? And this will help our viewers and listeners a lot to understand the concept behind the actual meaning of these two words. So let me first start with the moksha, right? Yeah. As soon as somebody say moksha, the moment they say the word moksha means he understood that मुझे कहीं जाना है मोक्ष पाने, Correct. or he will think that I wanted to get that moksha. Correct. So as soon as you think moksha, there is a what do you call, desire Hmm. is raise the desire that I want to be liberate, right? Yeah. But understand one thing: as soon as you have a desire, there will be no moksha. So moksha. Correct. Very true. Simple and short and sweet. जब तक डिजायर है, जब तक इच्छा है, तब तक मन रहेगा. Correct. मन मन नहीं रहेगा रहेगा तो मोक्ष तो नहीं है. मोक्ष नहीं मिलेगा. Correct. तो the point is, do not desire anything. Do not desire anything about moksha. You just practice your whatever you want to practice. Do not expect anything from it. The moment you don't expect anything, the moment you become desireless, you will gain the state of freedom. You will experience the state of freedom. Very कि true. मेरी कोई डिजायर ही नहीं रही है, तो फिर अपने आप ही फ्रीडम आनी ही आनी है. जख मार के आएगी फ्रीडम.
Very true. Very true. I can relate to this with an analogy, sir. If I am like when we were students, children, right, coming up, class 10, class 12, class 11, class 9, if we don't have that competitiveness, that 100% lana hai, first ana hai, the way we used to study was fantastic because we used to learn more, and that particular knowledge will reside with you for your entire life. But as soon as we go ahead and say मेरे को first आना है या फिर मेरे को किसी को हराना है, then the entire gamut of that knowledge becomes smaller. You might get the first rank, that's perfectly fine, but in the entire gamut of your life doesn't work properly. Yeah, totally clear, sir, what you have said. Desire है तो मन है तो मोक्ष नहीं. Simple. So moksha means to know your own being. Yeah. Moksha means to rediscover yourself. Moksha means to realize yourself. Moksha means to relive in your true nature. अपने स्वभाव में रहना. That is moksha. Right? Moksha means self-remembering. फिर से अपने को याद कर लेना. क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, हम उससे कभी अलग हुए ही नहीं है. Correct. But we have a mind layer, right? So that layers of mind, thickness of mind is in between. Because of that, we forget our true nature. Correct. So मेहनत जो भी कुछ करना है, वो मेहनत मन को हटाने के लिए करना है. मोक्ष पाने के लिए नहीं करना है. मन हटेगा तो मोक्ष अपने आप आ जाएगा. मोक्ष में तो हम है ही ऑलरेडी, अभी भी है, बट अनकॉन्शियस है. अनकॉन्शियस. गॉट इट. एकदम क्लियर. The moment you awake, you are in moksha. You are true. कहाँ जाना है मोक्ष मतलब? और कहाँ जाना? Actually, you are correct. मन हटा मतलब पाथ क्लियर हो गया. It's like that. This is good. This is good. This makes sense, sir. See, I can give you one analogy. I said that moksha means rediscover yourself. Let me give you one thing. आइंस्टाइन का जो एक वो है सूत्र है, उसकी फॉर्मूला है E is equal to mc square. Correct. Right? The energy is equal to mass and matter and light. Correct. Waves, right? तो वो एनर्जी तो थी. आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला ढूंढने से पहले वो एनर्जी तो थी ना. करेक्ट. मास भी था, लाइट भी थी. करेक्ट. So he rediscovered it. Correct. The same way when I say moksha means to rediscover yourself. तो वो तो है, मोक्ष तो है, वो तो हमारा स्वभाव तो है ही, हम उसी में है. So like Einstein has rediscovered E is equal to mc square. So the same way we have to rediscover our true nature. Perfect. Is like Newton has find the gravitation force, right? Correct. क्या उसके पहले वो नहीं था gravitation? It was still there. It was there, right? So he rediscovered it. Correct. And these are the ये जो खोज है वो तो बहुत बड़ी है. कितनी बड़ी है, but like revolutionary खोज है ना ये. Yeah. But somebody you rediscover it. So he relive with that moment. Yeah. So that is called moksha. So another thing, journey, और एक थोड़ी छोटी सी बात और समझा दूं. Journey will not stop at the moksha. Let's example कि आपको अपना स्वभाव का अनुभव हो गया. Moksha means you understand your nature. लेकिन मोक्षा मीन्स अपने से मुक्ति है ये.
मोक्ष मोक्ष पे गाड़ी रुक नहीं जाती है, बहुत आगे है, मोक्ष के बाद भी बहुत कुछ है। इट्स नॉट लाइक मोक्ष मिल गया तो सब कुछ खत्म बस। मोक्ष का मतलब वही है कि मोक्ष में आपको अपने से मुक्ति मिलती है। देखो, वन बर्थ यू विल गेट फ्रॉम योर मदर्स वूम। एक जन्म हमारे इस शरीर का वहां से होता है ना, करेक्ट, मदर्स वूम में से आते हैं। एक जन्म अपने को अपने गर्भ से देना है, खुद को। करेक्ट, वी हैव टू रीबॉर्न अवरसेल्फ। करेक्ट, रीबॉर्न अवरसेल्फ मीन अपने से हम मुक्त हो रहे हैं। करेक्ट, दिस इज ट्रू। अपने से मुक्ति है ना, मैं से मुक्ति है ना। हम बार बार कहते हैं ना, मैं, मेरा, ये, मेरी गाड़ी, मेरे मकान, मेरी बीवी, मेरा मेरा मैं। तो ये जो जो मैं है, यो अहंकार का जो मैं है ना, उससे मुक्त पाना है। तो वो जो मैं से मुक्ति है ना, उसको बोलते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मीन्स मोक्ष। अपने से मुक्त हुए हम। सुपर। फर्स्ट लेयर है हमारी, अपने से मुक्त। हम अपने से मुक्त हुए, लेकिन अभी तो ब्रह्म है, अभी तो बाकी सब कुछ है। कॉस्मिक है, सब कुछ है ना। करेक्ट। तो जो वर्ड आता है मैं कौन हूँ, हम्म। उसमें से मैं तो अहंकार है, लेकिन अभी हूँ बाकी है ना जानना। करेक्ट, अस्मिता, अहंकार मैं है, अस्मिता हूँ है। तो जो करेक्ट। हूँ, ये जो पूरा कॉस्मिक है, वो क्या है, वो क्या है? तो उसको भी तो जानना बाकी है। तो मोक्ष पे आके गाड़ी रुक नहीं जाती है, और जानने को बाकी है। So that means if you were to look at it in this manner, एनालॉजी के हिसाब से पासपोर्ट मोक्ष है, वीजा लग के बाद में काम बाकी। वीजा मिलेगा तब आप और देख, जैसे पासपोर्ट इंडिया पे लग गया, हाँ, आप आपको अमेरिका जाना है, लेकिन वीजा लगेगा तभी आप अमेरिका अभी देखोगे ना। जाओगे, राइट, एग्जैक्टली। तो मोक्ष पे थप्पा लग गया, आपने अपने को तो जान लिया, जान लिया। लेकिन ये ब्रह्म पूरा कॉस्मिक एग्जिस्टेंस है, उसको भी तो जानना है ना, कि वहां भी तो आप हो ना। मैं से मुक्ति हो गई है, लेकिन हूं तो बचा है। तो वो वेरी ट्रू सर। मोक्ष, तो वो हम जा तो वेरी ट्रू। उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म एक ज्ञान। आत्मा ज्ञानी होता है, एक ब्रह्म ज्ञानी, और एक यात्रा है आगे, और एक स्टेप है। मैं को जाना, हूँ को भी जाना, अभी हूँ जो नहीं है उसको भी तो जानना अभी है। तो जानना है। करेक्ट। जो है और जो नहीं है, नहीं है का मतलब शून्य पे आ गए हम। तो वो भी तो है, शून्य भी तो है। राइट। तो जिस दिन आप शून्य को जानोगे, उस दिन आप बुद्ध हो गए, अवेकन हो गए, दैट इज एनलाइटमेंट। एनलाइट। वो सही में एनलाइटन है, क्योंकि वहां आप मरोगे, मैं भी मरेगा, हूं भी मरेगा, और आप शून्य में प्रवेश करोगे। वहां शून्य में प्रवेश होके आप एक हो जाओगे एग्जिस्टेंस। तो दैट इज व्हाट। ये ये यात्रा है। तो हमेशा हमेशा ओशो से मैं हमेशा सुनता आया हूँ कि अगर साधना करनी है, शुरू करनी है, तो शून्य का लक्ष्य रखो, शून्य का। अगर आप शून्य के लक्ष्य रख के साधना में आगे बढ़ोगे ना, तो आप आत्मज्ञान पे नहीं रुक जाओगे। ऑटोमेटिक प्रोसेस चालू रहेगा। ब्रह्म पे भी नहीं रुकोगे, करेक्ट। क्योंकि शून्य पे कुछ भी नहीं हो जाना है। होना है, होके जानना है, जान के उसको भी छोड़ देना है। अभी न- है, लेकिन साथ में प्रकाश तो है, लेकिन अंधेरा भी तो है। करेक्ट। वेरी ट्रू। तो ये छोटी सी चीज में, मतलब इतनी बड़ी सारी चीज में मैंने एक छोटे से एक्सप्लेनेशन में डाली है, ट्रू। लेकिन उसमें पॉइंट सब अच्छी तरह से मैंने फिट किए, तो आप समझो कि मोक्ष का मतलब ये होता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि after people listen to this video and this audio and watch this video, one thing they are going to start thinking the actual definition of moksha.
जो सब लोग जनरली सोचते हैं कि मोक्ष मतलब मैं चला, but that is not the actual meaning of moksha. The actual meaning of moksha is what you just explained, and that makes logical sense. At first I have to understand who am I, अपने स्वभाव से परिचित होना, then move to the next phase, and that is moksha is the starting of enlightenment, if we can put it that way. Yes, yes. Well, exactly. Whatever you say is perfectly right. Now, another word I say, spirituality. Spirituality means हिंदी में बोले तो कहे तो हम आध्यात्मिक रिवोल्यूशन, आध्यात्मिक क्रांति, Correct. right? So the journey of the spirituality is start from ego to egolessness. क्या बात है, क्या बात है. The spirituality means ego to egolessness. The journey of spirituality means वाणी to मौन, शब्द से निशब्द की ओर. शब्द से निशब्द. Fantastic. Journey of spirituality means विचार से निर्विचार की ओर, विचार से निर्विचार की ओर. So let me repeat, sir. Ego to egolessness, from शब्द to निशब्द, विचार से निर्विचार. और जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी रूप से अरूप की ओर. रूप से अरूप. फॉर्म हम बनाते ना, फॉर्म से जिसको बोलते हैं आकार, आकार से निराकार, निराकार की ओर. Yeah, this makes sense. This is actually true. But what you are saying over here, and what has been said as the actual meaning of spirituality is, you have to get away from the physical things or the tangible things, what you know from your mind standpoint, move on to the level where you can see things as is without bias. Got That it? is the real meaning of spirituality. Spirituality is not like मैं माला फेर लूं, योग मंत्र, वो तो सब प्रोसेस है उसका. The process. The real crux of it, that आपको शब्द से निशब्द होना है, विचार से निर्विचार होना है, आकार से निराकार में जाना है, अहंकार से निरअहंकार होना है. That is Fantastic. the journey. So उस जर्नी पे बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन Correct. ये उसका मीनिंग है in real sense, right? Yeah. Now what I said, that ego से egolessness, right? Now let's understand the ego. Ego is a cultivated theory of mankind. True. Very true. Cultivated theory. Yeah. ईगो है नहीं कहीं, हमने ही बनाया है ना ईगो, राइट? और ये ईगो एक्सेप्ट मैन यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर इन दिस एग्जिस्टेंस. ओनली इन ह्यूमन काइंड. मनुष्य के अलावा किसी में आपको ईगो दिखेगा. करेक्ट. सो आई वुड से ईगो इज द डिजीज. आई वुड से ईगो है ना, एक हवाई किल्ला है. या इधर है सब, है पर दिखता नहीं है. करेक्ट. है तो सही है. वो आप हवाई किल्लों को कितना भी बड़ा बना सकते हो. इज लाइक यू कैन एक्सटेंड लाइक होल स्काई. करेक्ट. तो हमारा ईगो तो हम जितना भी फुग्गे में हवा भरेंगे उतना और बढ़ेगा ना. सो ईगो इज लाइक दैट. सी यू विल अंडरस्टैंड इफ आई गिव यू वन एनालॉजी. ह्यूमन काइंड सॉलिड ईगो है, सॉलिड ईगो है. ह्यूमन के नीचे एनिमल है, पशु है. वहां ईगो है पर उनको रियलाइज नहीं होता ईगो है. करेक्ट. वो है ही नहीं वहां. उनके पास मन है नहीं है, मन नहीं है. ह्यूमन के पास माइंड है, इसीलिए ईगो है. एनिमल किंगडम में माइंड नहीं है, ईगो नहीं है. और एक है
बुद्ध, अवेकन, या ईगो वहां भी नहीं है, करेक्ट, ईगो नीचे भी नहीं है, ईगो ऊपर भी ऊपर नहीं भी है, नहीं बीच में लटक है, रहे ईगो हैं। बीच में ही है, हम लोग के पास ही है। हाँ, एक का ईगो छूट गया तो वो बुद्ध हो गया, करेक्ट, एक 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 के पास ईगो है ही नहीं तो वहां मन बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं। तो हम बीच की कड़ी है। ट्रू, तो हमको यहाँ से उठ के आगे जाना है, आगे जाना है। ऊपर जाना है। तो ये है मतलब यही मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स क्या, यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम ईगो टू ईगोलेसनेस, This is राइट। fantastic, sir. This makes sense. अभी मजा ये है, हमको जाना है तो ईगो से ईगोलेसनेस, लेकिन ट्रैवल कौन करेगा? Correct, ट्रैवल करने के लिए तो ईगो चाहिए ना। correct. बिना ईगो के हम कैसे ट्रैवल करेंगे? तो बिना बिना ईगो के ट्रैवल तो ईगो ईगो से होती है, लेकिन वो ईगो ट्रैवल होते होते ईगोलेसनेस होती है कैसे? एक Hmm. एनालॉजी उससे एक समझाऊंगा ना, दो एनालॉजी दूंगा तो उससे अब बिल्कुल बात साफ हो जाएगी। देखो, एक एक जगह पे मेला लगा था, समुद्र के किनारे में मेला लगा था, मेला। तो वहां सब पंडित, पुरोहित, सारे ज्ञानी ध्यानी सब आए थे वहां पे। तो सब लोग डिस्कस कर रहे थे समुद्र की गहराई कितनी, Hmm. माप, समुद्र कितना गहरा है। सब लोग ऊपर वहीं से बाहर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि समुद्र की गहराई कितनी। वो सब अपने शास्त्र से कैलकुलेशन लगा रहे, इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, लेकिन वो सब बाहर ही बाहर है। Correct. तो वहां सब बातें हो रही थी, उसमें उसमें वहां दो नमक के पुतले आ गए, Okay. नमक के पुतले दो आ गए। तो उन्होंने सबकी बातें सुनी, तो उन्होंने कहा, वो तो अहंकार आ गया, हम जाएंगे, हम खोज के आएंगे Hmm. समुद्र की गहराई कितनी। Hmm. तो सबने वो वाह 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 करी, तो वो तो हवा पे चढ़ गए, हम जाएंगे, चलो। ईगो ईगो उनका बढ़ गया, तो वो तो दोनों कूद पड़े समुद्र में। Correct. They dive inside. As soon as they start going down, नीचे जैसे जैसे जाने लगे, तो नमक के पुतले थे वो तो Dissolve होने पानी में नमक का पुतला वो डिजोल्व होने लगा, डिजोल्व होने लगा। right. तो जाते गहरे 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 जाते जाते वो तो वैनिश ही हो गए, वो पानी के साथ एक हो गए। Correct. और यहाँ सब पंडित राह देख रहे हैं कि कब कब आएंगे, कब आएंगे। 1 महीना हो गया, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, लेकिन नमक के पुतले तो आए ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ, द मोमेंट हमारी जर्नी, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, हम ईगो से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम परमात्मा की ओर बढ़ेंगे, तो परमात्मा की जो ऊर्जा है, परमात्मा की जो गर्मी है, जैसे ही हम जाएंगे, हम पिघलते पिघलते जाएंगे। ईगो अपने आप डिसॉल्व होते जाएगा, क्योंकि Correct. जब भी आप हाइट पे जाते हो, जब भी Correct. ऊर्जा उठेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, ऊर्जा Correct. उठेगी 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 उठेगी, अवेयरनेस उतनी आपकी बढ़ जाएगी कि आपको अपना अपना होने का पता ही नहीं चलेगा। ये शरीर, बॉडी, माइंड, इमोशन अपने आप सब छूटने लगेगा। Very true. डिजायर्स, जैसे जैसे आप उस अस्तित्व के पास में जाने लगोगे ना, ईगो अपने आप लूज होने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा। और एक मोमेंट आएगी कि जब आपका मिलन होगा, कि आप उस स्पेस में एंटर करोगे, तो आप खुद 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 अस्तित्व हो जाओगे। Exactly the point. So ego is actually your key to travel towards the first step of enlightenment, which is moksha. सो डोंट से लाइक दैट, मुझे अहंकार छोड़ना है, ईगो छोड़ना है। अरे ईगो छोड़ना नहीं है, ईगो छूट जाएगा अपने आप। ईगो Ego को मीन बनाओ। use ईगो करो. पत्थर है ना, पत्थर पे पैर रख के, ईगो के ऊपर पैर रख के आप फ्री हो जाओ ना। Exactly correct.
यूज दैट ईगो, मेक अहंकार को सेंस, यूज करना है। मेक हमको सेंस। जो भी अस्तित्व से मिला है ना, सबको यूज करना है, यूज करके अपने को एलिवेट कर लेना है। और मिला यही ही साधना इसीलिए, है, साधना यही है, यही आर्ट है यही आर्ट जीने का। जो मिला है उसको यूज उसका करो। उपयोग करो, सही सही उपयोग। सो ध्यान, अवेयरनेस वो आर्ट देता है कि इसका उपयोग, कैसे हाउ करें? डू वी यूज दिस। यस, परफेक्ट, दिस इज एक परफेक्ट। बर्फ का लो टुकड़ा लो, बर्फ का टुकड़ा, वो अपना ईगो ईगो को आप कर सकते हो रिजेंबल, राइट? इट्स लाइक ईगो, ईगो है सॉलिड। वो आग आग के नीचे आएगा तो अपने आप पिघल जाएगा। पानी होने लगेगा, करेक्ट, और आग बढ़ेगी, भाप हो जाएगा, भाप करेक्ट, होके आकाश के साथ एक हो जाए। एक हो जाएगा, अस्तित्व ही चला गया। वैसा ही ईगो जो सॉलिड है, जैसे जैसे आपकी गर्मी उष्णता परमात्मा की प्यास बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, अपने आप सब होने लगेगा। यू हैव टू जस्ट वर्क अपॉन योरसेल्फ, और कुछ भी करना नहीं है। करने की जरूरत नहीं। स्पिरिचुअल जर्नी, साधना अपने अंदर ही शुरू होती है और अंदर ही खत्म हो जाती है, बाहर आने की जरूरत ही नहीं। यही ना मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट खोजने की पॉइंट, जरूरत है, ना कहीं कुछ खोजने की जरूरत है। भीतर ही खोजो और भीतर से ही सब मिल जाएगा। यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने बोली है एक लाइन में। राइट। Spiritual journey is all about getting into yourself and just remaining there. देखो, और एक एनालॉजी है, वो जो आइंस्टाइन की बताई नहीं, E इज इक्वल टू एम सी MC स्क्वायर, square, yeah. कि साइंस में, साइंस के है तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। Neutron, मैंने थर्ड एपिसोड में बताया था, मालूम है? निगोध, Nigod, correct, अटर डार्कनेस है। right, सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव फोर्स, correct, अटर डार्कनेस। yeah, वहां से सब आया। विदाउट इलेक्ट्रॉन, अब आज के वर्ल्ड के साइंस में भी इलेक्ट्रॉन्स ही है आखिर में। साइंटिस्ट को क्या मिला है आखिर में? इलेक्ट्रॉन मिला है। electron मिला है। कोई भी आप मैटर को ब्रेक करते 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 आखिर में आपको इलेक्ट्रॉन मिलता है। Very true. और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, इज लाइक अ ब्रह्मा विष्णु महेश। लॉजिक लगाएंगे तो वही आंसर आने वाला है, बस ये है कि लॉजिक लगता नहीं है, दैट्स द होल तो प्रॉब्लम। हमारा मन प्रतिपल ब्रह्मा विष्णु महेश में घूम रहा है। करेक्ट, हमारा मन कुछ बना रहा है ब्रह्मा की तरह, राइट, कुछ मेंटेन कर रहा है विष्णु की तरह, हम्म, कुछ नष्ट कर रहा है महेश की तरह। करेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन इज अ शिवा, प्रोटॉन इज अ ब्रह्मा, न्यूट्रॉन इज विष्णु। सिंपल, रोज रोज हम हमारी दुनिया बनाते हैं, कुछ कुछ थॉट्स नए बनाते हैं, हमारे थॉट्स ब्रह्मा की तरह आते हैं, तभी समझ लेना ब्रह्मा काम कर रहा है। करेक्ट, हमारे कुछ कुछ थॉट्स ऐसे आते हैं कि हम इस चीज को मैं मेंटेन कर लूं, समझ लेना विष्णु काम कर रहा है। करेक्ट, तो कभी का थॉट आता है, यार ये अच्छी चीज नहीं है, चलो इसको घर से निकालो, बाहर निकालो, इसको डिस्पोज करो, तो शिव जी की तरह काम करो। शिव जी की तरह काम कर। सिंपल लॉजिक है, सिंपल। आप यही समझ लो, अब यही हो रहा है आपके साथ, आपका मन यही कर रहा है हर पल हर मिनट, ब्रह्मा विष्णु महेश। ट्रू, दैट्स ट्रू। हम हर पल यही करते हैं। स्टार्ट स्टॉप कंटिन्यू वाला सीन है, आज के लैंग्वेज के हिसाब से स्टार्ट स्टॉप कंटिन्यू, राइट, इट्स द सेम थिंग। और इलेक्ट्रॉन के बिना आप देखो, इलेक्ट्रॉन मतलब एक समझ लो ब्लैक बोर्ड, बोर्ड है पूरा, पूरा ब्लैक बोर्ड। उसके अंदर आप ब्लैक चॉक से लिखोगे तो कुछ दिखेगा नहीं। करेक्ट, यू हैव टू हैव प्रोटॉन, करेक्ट, लाइट चाहिए। राइट, अंधेरे में लाइट होगी तो फटाक से दिखेगी ना। दिखेगा, वेरी ट्रू। तो इट्स लाइक दैट। सो इलेक्ट्रॉन के बिना, जो मैंने निगोज का जो बोला था ना, ये इसी से बराबर आप कर लेना लिंक अभी इसको, तो आपको बात बिल्कुल साफ साफ हो जाएगी। सुपर है, सुपर। आज तो आपने मतलब यू हैव टच्ड अपॉन
the most basic conceptual parts which people need to remember and understand much deeper, that how do you start your journey for yourself by keeping logic in mind. राइट। अभी हम ह्यूमन फॉर्म में तो आ गए, ह्यूमन फॉर्म में आके लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट दैट हमारे पास 7 चक्र है, राइट। 7 शरीर है, शरीर। करेक्ट। चक्र भी है, 7 शरीर भी है। करेक्ट। पहला चक्र है मूलाधार, या रूट चक्र, उसके साथ हमारी फिजिकल बॉडी अटैच्ड है मूलाधार से। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान, करेक्ट। उससे हमारा भाव शरीर जुड़ा है, जो ये फिजिकल शरीर के पीछे है। हाँ, फिजिकल बॉडी के पीछे है भाव शरीर। तीसरा शरीर हमारा मणिपुर है, मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र। राइट। उसका शरीर है एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, रिजन बॉडी। ओके। राइट। राइट। चौथा शरीर है हमारा अनाहत चक्र, उसके साथ हमारी मेंटल बॉडी जुड़ी है, जिसको हम बोलते हैं साइकिक बॉडी, साइकिक बॉडी, साइकिक बॉडी या मेंटल बॉडी, साइकिक बॉडी। पांचवा चक्र है विशुद्धाख्य, वो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, आत्मिक बॉडी। मैंने नहीं कहा आत्मा, आत्मिक बॉडी है पांचवा शरीर। छठा शरीर है हमारा आज्ञा चक्र, वो जुड़ा है ब्रह्म बॉडी से, कॉस्मिक बॉडी है। हमारे अंदर ये पीछे पीछे है, ये हमारा फिजिकल शरीर के पीछे और पीछे, या मैं ऊपर ऊपर लेके जा रहा हूँ, अनाहत आज्ञा चक्र। और लास्ट चक्र है सहस्त्रार चक्र, वहां है निर्वाण शरीर, बॉडीलेस बॉडी, बॉडीलेस बॉडी, निर्वाण, निर्वाण। तो ये सारा खेल हमारा, ये पूरे ब्रह्मांड का पूरा खेल हमारे अंदर ही है। जंक्शन एनर्जी का जंक्शन शरीर सब हमारे अंदर छुपा है। वो बोलते हैं ना, जो ब्रह्मांड में वही वही हमारे पिंड में। करेक्ट। राइट। तो हमारा जो मनुष्य का शरीर, अच्छा वो मैं बाद में बताऊं, और एक पॉइंट समझ लेना। तो ये जो 7 चक्र और 7 बॉडीज मैंने बोली ना, एग्जिस्टेंस के हर एक में, नॉन लिविंग में और लिविंग बीइंग में, आदमी जिंदा है कि मरा हुआ है, मैटर है या एनर्जी है, वो सभी में ये 7 बॉडीज ऑलवेज अवेलेबल रहती है। 7 शरीर हमेशा होते ही है, राइट। लेकिन वो 7 शरीर, जैसे जैसे एग्जांपल दूं, पकड़ लो, झाड़ पकड़ लो, पौधा पकड़ लो, पौधा या कोई भी झाड़, पौधे या झाड़ में फर्स्ट बॉडी एक्टिव होती है, फिजिकल बॉडी, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी है ना झाड़ की अपनी। करेक्ट। उसके पास 7 शरीर है, लेकिन फर्स्ट शरीर ही एक्टिव है। बाकी के 6 शरीर सोए पड़े। करेक्ट। एक्टिव नहीं है। एक्टिव और कॉन्शियस का मतलब समझ लेना। एक्टिव मीन्स सक्रिय, सक्रिय है, सक्रिय है, समझ गया। लेकिन अवेयर नहीं है, अवेयर नहीं है। करेक्ट। तो जो झाड़ का पौधा है, उसके पास फिजिकल बॉडी तो है, लेकिन बाकी के 6 शरीर अनकॉन्शियस है, अवेयर, एक्टिव नहीं है। या उसके ऊपर हम चले तो एनिमल किंगडम आ गया। या सो एनिमल किंगडम के पास दूसरा शरीर भी एक्टिव हो गया,
तो उसके पास पहला जो फिजिकल शरीर है वो, और दूसरा जो भाव शरीर मैंने बोला था, या इथरिक भाव शरीर, करेक्ट, वो भी एक्टिव है एनिमल में। बाकी के 5 शरीर जो है वो अनकॉन्शियस पड़े, अनकॉन्शियस, एक्टिव एक्टिव भी नहीं है। क्योंकि एन देखो एनिमल, देखो एनिमल यहाँ से वहां जा सकता है ना। करेक्ट, मूव कर जो सकते, मैंने वो शरीर बोला था इथरिक बॉडी, करेक्ट, उसके पास वो एनर्जी है यहाँ से वहां जाने की। वो करेक्ट, भाव शरीर में वो फील करता है ना अपने को, करेक्ट, वो भय को फील करता है, डर को फील करता है, उसको हम्म, भूख लगती है तो पता चलता है, उसको प्यास लगती है तो पता चलता है। तो या वो कहाँ से आता है? भाव शरीर से ही समझता है ना वो। राइट, इसको प्रेम करेगा तो भी वो समझेगा ना। या तो जो झाड़ पेड़ पौधे है उसमें एक ही शरीर है, हम्म, उसके पास जाओगे आप, लेकिन ही विल नॉट फील दैट। करेक्ट, लेकिन जो पहला शरीर और दूसरे शरीर के बीच में जो स्पेस जगह है ना, या वो कभी कभी आप देखो अफ्रीका के जंगलों में या बहुत सारे जंगलों में कोई आपको मिलेगा पौधा, वो एक जगह पे खड़ा है, एक जगह से छोड़ के फिर आगे घूमता है, फिर वो दूसरी जगह पे जाता है। करेक्ट, करेक्ट, तो वो कर सकता है मूव। तो वो जो पौधा है ना, वो पहले और दूसरा जो ये शरीर है उसके के बीच में, बीच की लेयर है वो। गॉट इट, तो उसके पास आधा शरीर एक्टिव भी है और आधा भाव शरीर भी है। हम्म, तो अभी गॉट इट, देखो एग्जिस्टेंस में पूरा बराबर सब आ रहा है। ऐसा नहीं कि वहां कुछ अराजकता है, कि हम्म, कुछ भी हो चाहे, वो बराबर सब अपनी जगह पे फिट बैठ रहा है। राइट, राइट। अभी एनिमल से अभी हम लोग आ गए ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन के पास फर्स्ट जो फिजिकल बॉडी एक्टिव है, भाव शरीर एक्टिव है, और एस्ट्रल बॉडी एक्टिव है। करेक्ट, 3 शरीर मुख्य एक्टिव है, बाकी के चारों एक्टिव नहीं है। लेकिन चारों को एक्टिव होने की पूरी पूरी संभावना लेके वो आया है। 5 शरीर, 4 शरीर है ना, या वो ह्यूमन फॉर्म में वो लेके आया है उसका सीड। कि अगर काम करेंगे तो वो एक्टिव कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि ह्यूमन ह्यूमन योनि, ह्यूमन फॉर्म इज सच अ इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म। करेक्ट, वो बीच में है, उसके नीचे जो अनाहत चक्र है ना, जो फोर्थ बॉडी, हम्म, उसके नीचे है थ्री 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 एनर्जी जंक्शन, और करेक्ट, ऊपर है 3 एनर्जी जंक्शन। करेक्ट, सो मनुष्य योनि बीच में। अगर देवता को भी, अगर देव योनि कोई गया होगा तो उसको हम्म, फिर से मनुष्य योनि में आके फिर अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा बुद्ध करेक्ट, होने के लिए। करेक्ट, या कोई प्रेत योनि में गया होगा, उसे भी मनुष्य में आना पड़ेगा। और हम करेक्ट, लोग तो आ ही रहे, आई पीछे से रहे, झाड़ पशु पौधे पहाड़ बनते बनते ह्यूमन। तो ह्यूमन ह्यूमन फॉर्म इज अ सेंटर पॉइंट है। मतलब जंक्शन यहाँ है से ये, आप, यहाँ से प्रेत योनि में भी जाते हो, देव योनि में भी जाते हो, बुद्ध भी बनते हो, भगवान भी बनते हो, ब्रह्मा भी बनते हो, आत्मज्ञानी भी बनते हो। करेक्ट, सो सो ये है। तो ये 7 शरीर का जो ये मैंने समझाया, इस तरह से है। राइट। अभी हमको तो बॉडी मिल गई, ये 3 फिजिकल बॉडी, हम्म, हमारे पास 3 बॉडी है। अभी साधना में बढ़ने के लिए, एनर्जी जंक्शन को समझो, कुंडलिनी के ऊपर काम करने के लिए, ये पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड बॉडी को हमको अलाइन करना पड़ेगा। करेक्ट, उसको अगर अलाइन नहीं किया तो कुंडलिनी का मार्ग बहुत खतरनाक हो सकता है। करेक्ट, तो वो साधना में, ऊर्जा की साधना में जाने के लिए अगर हमारे पास थोड़ी प्रिपरेशन होगी, फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी और थर्ड बॉडी जो हमारी एक्टिव है, उसको हम थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर कर ले काम। हम्म, उस ध्यान में, अगर हम गहरे ध्यान में हमको अनुभव मिलता है ऊर्जा के उठने का, तो हमको वो नुकसान नहीं करेगी। करेक्ट,
नहीं तो क्या होता है, वो ऊर्जा फिर हम लोग प्रिपेयर नहीं है, हैंडल और नहीं कर ऊर्जा पाएंगे। आई सो वी कैन नॉट हैंडल दैट, करेक्ट, वी कैन नॉट हैंडल इट। राइट। जैसे हमारे पास 10 वोल्ट का बल्ब लेने की ऊर्जा की क्षमता है बॉडी में, लेकिन उसी में अगर 10,000 वोल्ट उतर जाए तो फ्यूज, बात खत्म। फ्यूज क्या खत्म। हमारा नाम हो। तो उसका, उससे क्या होता है पता है, तुम्हारे जो पीछे 4 शरीर है ना, उसको कर देगा डैमेज वो। करेक्ट। तो वो हमको नहीं होने देना है, करेक्ट। इसीलिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बॉडी को हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो तो सर, वो जो प्रिपरेशन है वो हम नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट में एपिसोड में डिस्कस बात करेंगे। करेंगे बिकॉज कि हाउ वी शुड प्रिपेयर दैट। या बिकॉज व्हाट यू हैव सेड, आज आपने एटलीस्ट 5 से 8 पॉइंट्स इतने सॉलिड वाले बोले हैं, and all these points are extremely important for our viewers and listeners to listen to it again and again. And then when we move to the next episode where you start discussing about how to align the first 3 levels of energies in our body, first 3 chakras, that will actually help them. This has been a great conversation today, sir. Thank you very much for your time. And to all the viewers and listeners, please do like, subscribe, and share, and leave your comments. We are coming up with much more interesting things. Thank you, And sir, thank you once all the again. viewers. Yes, thank you all the viewers. And I wanted to give my gratitude again to my Guru Osho. It's Yes. because it's all his knowledge and all his blessing. I'm just a medium. I'm just passing that blessings and energy to others. You know, somebody, if anyone, even if one person get transformed or one person get changed, my mission is complete. True, very true. Even if we can impact one life, we have done a good enough job like that, right? So, with that, see you next week, everyone. Bye bye.